देन वेनसडे कम्स सॉलिड्स फ्लूइड्स थर्मो एसएचएम वेव्स। देखो 2 अप्रैल का बात है। मैंने क्या किया है, ह्यूमन फिजियो लाइक ब्रीदिंग, ये ऐसा शायद लिखा था मैंने, 1 2 3 4। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Komal, and in today's video I'm going to talk about how you can revise whole syllabus in 1 week. Okay, in this video I'm going to talk only about physics and chemistry. For bio I will bring another one, and before that let me say you, like in my time I followed Avinash Sharma sir का वो bio planner कि कैसे उन्होंने बताया था 5 रिविजन्स इन अप्रैल पूरे बायो को। तो मैंने उन्हीं का फॉलो किया था और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर लाइक आई विल टेल यू कि मैंने कैसे कौन से वीडियो देखा था और उसमें क्या क्या उन्होंने बताया था विथ टाइम स्लॉट्स आपको रिवीजन करना है बायो का। तो इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, फॉर दिस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिक्स एंड केम। तो अगर हम बात करें पहले फिजिक्स की, ओके, सो फॉर एग्जांपल यू हैव टू गिव अ फुल टेस्ट, लाइक a fully prepared full test on Sunday. Okay, so for that you need to revise your syllabus once, okay, like from Monday to Saturday. Okay, so you have to divide each day, and each day you have to keep some chapters so that you complete all the chapters by Saturday. Okay, so for example, Monday we are starting with units and measurements. Then we have kinematics, laws of motion, work energy, power, and circular motion. Let me tell you one thing. I have written 4 chapters. Now you will say that ये 4 chapters कैसे होगा एक दिन में? इन 4 chapters में करना क्या है आपको? You just have to see the short notes. Okay, just see the short notes, not anything else. क्योंकि और टाइम ही नहीं होगा आपके पास कि आप कुछ और देख सको. Okay, so you just have to go through the short notes. For example, if I have to study kinematics now, what I will do is I will open my short notes where I have written my kinematics ka all concepts, formulas, whatever, and I will roughly try to memorize or recall, not memorize, I will recall the like concepts and formulas. तो पहले मैं recall करूँगी, then I will check it on my notebook that if I am recalling it correct or not. Okay, so बहुत ही शॉर्ट में करना है आपको। आपको 20 मिनट मैक्स लेना है किसी भी शॉर्ट नोट को रिवाइज करने के लिए। उसके बाद अगर आपको लाइक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, देन यू कैन गो थ्रू द मार्क्ड PYQs, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो मंडे को हो गया ये, उसके बाद ट्यूसडे को यू कैन गो विद दिस। देन वेनसडे कम्स सॉलिड्स फ्लूइड्स थर्मो एसएचएम वेव्स। थर्सडे में हो गया ये, यहाँ से लाइक 12th का पोर्शन हो गया। उसके बाद फ्राइडे एंड सैटरडे यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट रिसोर्स, एज आई सेड, यू जस्ट हैव टू यूज शॉर्ट नोट्स. Now, after the short notes, not gaining confidence, go for marked PYQs. And after that, if you have time, then of course you will have to see those summaries and points to ponder at the back of the NCERT book, because you know this year what happened, like last year what happened with that question. Now coming to chemistry, तो यहाँ पे हम पहले फिजिकल को देखेंगे, देन वी गो टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. सो बेसिकली विल स्टार्ट विथ फिजिकल because it is more retentive. Okay, so yeah, first we have mole concept, then atomic structure. उसके बाद ये दोनों periodic table और chemical bonding उतने volatile नहीं है, so you can keep it here. Tuesday thermo, redox, IUPAC and hydrocarbons. Okay, Wednesday को हो गया ये, उसके बाद Thursday ये, then Friday and Saturday. You can see I have मतलब distributed each and every chapter like from Monday to Saturday according to my preference level. Now you can change it according to you. If you feel you need to do some changes over it, so you are free to do that. उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक ऐसा टेस्ट चूज़ करो जिसमें PYQs हो. तो you know what,
मेरे साथ क्या होता था, मैं अलग से PYQs नहीं करती थी। मैं जो टेस्ट कर रही थी ना रोज, लाइक मैंने बोला था आई वाज गिविंग टेस्ट रेगुलरली फ्रॉम मिड मार्च, सो व्हाटएवर टेस्ट आई वाज अटेम्प्टिंग, in that test we already had PYQs and PYQs related questions. Okay, so I revised my questions in the test itself. I didn't give any extra time to mark PYQs or something like that. So I just revised my notes, and while attempting paper, I revised the questions. So like this, I didn't waste any extra time. Okay, so you can do this like if you have shortage of time now. उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया है, मंडे टू सैटरडे आप इतने इतने चैप्टर्स करो, ये मैक्स पोटेंशियल है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे से भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। ओके, ये मैक्स है जो आप अचीव कर सकते हो। अगर आपसे इतना नहीं भी हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन कट शॉर्ट सम चैप्टर्स जो जो आपसे नहीं हुए हैं, लेकिन आप ट्राई करो इसे करने का। आप जितने बार रिवाइज करोगे लास्ट मंथ में, उतना आपको काम आने वाला है उस दिन। वो मैंने एक्सपीरियंस किया था लाइक पिछले साल। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अपने इन दिनों में क्या क्या कवर किया था, लाइक अप्रैल में, तो आप देखोगे माई प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप भी इतना ही करो, यू जस्ट ट्राई टू बी एट योर मैक्सिमम। अगर ना हो तो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योर। ओके, सो अगर मैं बात करूँ, देखो 2 अप्रैल का बात है, मैंने क्या किया है, ह्यूमन फिजियो लाइक ब्रीदिंग, ये ऐसा शायद लिखा था मैंने, 1 2 3 4 ह्यूमन फिजियो का मतलब 4 चैप्टर किया है मैंने। उसके बाद एनालिसिस, जो मैंने पिछले दिन टेस्ट दिया था उसका ये एनालिसिस है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का PYQs मैंने लिखा है, 11th का P ब्लॉक लिखा है मैंने। उसके बाद मॉक टेस्ट PYQs, और जो मैंने बोला था ना कि मॉक टेस्ट भी देती थी मैं, तो मॉक टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बाहर का हो, आप 2015 का पूरा सेट निकाल के उसे भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। सो लाइक दैट, ये PYQ हो गया। उसके बाद सेमीकंडक्टर का फॉर्मूलाज, उसके बाद अल्कोहल का NCERT, मैंने ऑर्गेनिक की NCERT पढ़ी थी इसलिए मैंने यहाँ पे NCERT लिखा हुआ है। उसके बाद ये एन्चैंटिंग, उसके बाद ह्यूमन फिजियो 5th, मतलब ये देखो 6th। बायो का मैंने 6 चैप्टर किया अकॉर्डिंग टू दैट प्लानर, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन, तो आप देख सकते हो बस इतना ही कंटेंट मैंने किया था। और हो सकता है कि ये तो 2 अप्रैल का है, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, मैंने हर दिन का स्केड्यूल बनाया था। ये 9 अप्रैल, ये 11 अप्रैल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हियर आई हैव रेड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन हेल्थ, रिप्रो 1 2। ओके, उसके बाद एवोल्यूशन मेरे से नहीं हुआ था, सो यू कैन सी अ क्रॉस हियर। उसके बाद फिजिक्स का फॉर्मूलाज किया मैंने, वो मैंने लिखा नहीं है कितने चैप्टर्स का किया था, वो मैं ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स 3 4 चैप्टर एक साथ ही होता है। अब ऐसा नहीं कि आप एक चैप्टर करोगे एक दिन में। ओके, तो ये हो गया फिजिक्स के फॉर्मूलाज। उसके बाद मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस, उसके बाद केमिस्ट्री के PYQs, P ब्लॉक 52 मिनट्स, मतलब जो सिलेबस में है। उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस किया है, फिर ये एन्चैंटिंग एनालिसिस मेरे से नहीं हुआ इसलिए क्रॉस, एल्डिहाइड कीटोन का NCERT और रेडॉक्स मेरे से नहीं हुआ था इसलिए क्रॉस। तो यू कैन सी माई कंटेंट, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि मैंने पिछले साल भी बहुत रिवाइज किया था इसलिए इतने कम में मेरा शायद हो गया, पर ऐसा नहीं कि मैं बैठी नहीं थी। आई वॉज सिटिंग फॉर 13 आवर्स और 14 आवर्स इतना अचीव करने के लिए। ओके, और ये जो मैंने ये स्केड्यूल बनाया हुआ था वो मैंने अपने टेली पे डाला हुआ है, सो यू कैन चेक इट आउट। तो ऐसा ही मेरा स्केड्यूल रहता था। सो या, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन रिवाइज योर होल सिलेबस इन 1 वीक। तो यही एक तरीका है, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने अचीव किया हुआ है एक एक दिन, नहीं। आप देख सकते हो मेरा जो स्केड्यूल है वो आपके सामने है। मेरे से भी इतना मैक्स नहीं हो पाया, मैं बोल रही हूँ ये पूरा मैक्स है जो आप अचीव कर सकते हो। तो कोई बात नहीं, अगर आप इतना ना भी कर पाओ तो इट्स ओके इफ़ यू आर लीविंग 3 to 4 चैप्टर्स, आप नेक्स्ट डे उसको कर लेना, लेकिन आपको करना होगा। आप ट्राई करो, नेक्स्ट मंथ में जितना ज़्यादा रिवीजन होगा इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो या, आई गेस आई गेव ऑल द इंफॉर्मेशन
और बायो की वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगी। और उससे पहले एक और बात कि जो मतलब मैंने बोला रोज़ टेस्ट देना है, तो रोज़ जो हम टेस्ट दे रहे हैं उसके लिए तो ये प्रेपरेशन नहीं है। ये जो प्रेपरेशन है वो जो हम संडे को एक लाइक प्रॉपर मॉक टेस्ट देंगे विथ OMR विथ टाइम लिमिट, ये उसके लिए है। रोज़ तो आपको टेस्ट देना ही है। अब ये मत पूछना कि रोज़ मॉक टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होता है। उसके लिए बस एक टाइम होता है 10 से 12, आपको 10 से 12 बैठना है पेपर लेके, आपको खुद पे खुद आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने रिविजन नहीं किया तो आपको नहीं आएगा, आपने पढ़ा है, सो यू विल ऑफ कोर्स बी रेडी टू टेक द आंसर्स। ओके, तो हम जो प्रिपेयर करते हैं वो एक हफ्ते का स्केड्यूल होता है फॉर दैट वन संडे। ओके, टिल देन बाय।